we are talking about types of blood cells. So in this particular video, we are going to talk about the erythrocytes. So in this video, we are focusing on this cell especially, red blood cells. Let's understand its importance, its function. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल में तैयार हो रहा है, इसे ये लेके आता है कहाँ पे? ये लेके आता है लंग्स में। तो ये होता है 7.5 माइक्रोमीटर्स, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इनफैक्ट अगर स्पर्म सेल्स के आसपास अगर कोई सेल है जो बहुत छोटा होता है तो वो कहलाती है आरबीसी। तो हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में होने से हम कहेंगे कि ठीक है? तो लगभग 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। Hello guys, welcome to the session and I welcome you all to the platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. This is Devika, your biology buddy, and we are talking about types of blood cells. So in this particular video, we are going to talk about the erythrocytes. Now my dear students, we have already understood that erythro is basically a Greek word which stands for red, isn't it? Cytes are the cell. So we are talking about the red blood cells. Yes, of course. Right? So we have seen that the blood components has different kind of cells, the solids in it. That is your red blood cells, platelets, monocyte, lymphocyte, eosinophils, neutrophils and basophils. All of this on one hand, we can say that these are the WBCs, types of WBCs. Right? So WBCs have quite a variety over there, काफी सारा variety है। और यहाँ पे we have this red blood cells and the platelets. So in this video, we are focusing on this cell especially, red blood cells. Let's understand its importance, its function, and why does it do what it does? Yeah. So let's see. First of all, your red blood cells, which are also called as the erythrocytes, their major job is of transportation of oxygen. What does it do? It do the transportation of oxygen as well as carbon dioxide, right? So it is a gas transporting system, can we say? Yes. Now how does it do? Right? How does it transport oxygen? So like we sit in a car, so we have a door to open and then we get inside it and then the Ola Uber takes it up, right? So the RBCs are like the Ola Uber for your carbon dioxide and oxygens, right? Oxygen and carbon dioxide. Now when we talk about this, carrying it up, it must be having something which is binding to the oxygen, and that is called as the respiratory pigment, right? That respiratory pigment is nothing but your hemoglobin, right? Hemoglobin क्या है? Hemoglobin एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है? ये एक ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन, आप समझते हो ना? ग्लोबुलर मतलब उसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर है, ठीक है? सो ये जो प्रोटीन है, it binds, it has this capacity to bind the oxygen, because of which now it can transport it. Okay? So ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड करने में मदद करता है। जब भी whenever RBC is with oxygen, जब आरबीसी ऑक्सीजन के साथ हो, ठीक है? जब ऑक्सीजन आरबीसी के साथ हो, जब उसके साथ बाइंड हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? We call it as the oxyhemoglobin, right? We call it as oxyhemoglobin. What do we call it? Oxygen and hemoglobin का hemoglobin, right? Or we call it oxyhemoglobin. All right, fantastic. Now you must have also heard a terminology जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो जब भी हम समझते हैं ना कि डीऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इट इज बाइंडिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ऐसा नहीं है। डीऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब ऐसा आरबीसी जो ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंधा हुआ है, ना ही ऑक्सीजन के साथ बंधा हुआ। इट इज नॉट बाइंडेड टू एनीथिंग, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंधा हुआ होता है, समझ लो कि इसका बाइंडिंग हो गया है CO2 अपना कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होगा कि हमारे टिश्यू में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस
होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में? व्हेन आवर सेल्स आर डूइंग द रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एटीपी जनरेशन, है ना। ग्लूकोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तब ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी जनरेट होती है। दैट इज प्रिसाइजली द डेफिनेशन ऑफ aerobic respiration, breakdown of the glucose molecule in the presence of oxygen to produce ATP, that is your energy, carbon dioxide and water. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल में तैयार हो रहा है, इससे ये लेके आता है कहाँ पे? ये लेके आता है लंग्स में, ठीक है। ये कहाँ पे लेके आता है? लंग्स में। तो डबल सर्कुलेशन होता है ना हमारे हार्ट में, तो वो कहाँ पे लेके आता है? लंग्स में, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे आरबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं कार्बिनोहीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहते। तो ये बात समझ लो कि 3 स्टेजेस है। कैसी कैसी? पहली तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जहाँ पे आरबीसी और ऑक्सीजन बंधा हुआ है। दूसरी स्टेज है जस्ट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जहां पे आरबीसी किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है, ना कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन। एंड देन देयर इज थर्ड वन विच इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वेयर ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इज विथ आरबीसी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. Now when we come to the structure, what is the structure? How does it look? Now because it has this heme pigment, who has heme pigment? The hemoglobin protein has a heme pigment. Because of that it appears to be red in color. इसी की वजह से हमारे खून का कलर लाल है, ठीक। Then we have the structure over here, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर इसका हम देखें तो पूरा का पूरा अगर हाइट हम देखें इसका, तो ये होता है 7.5 माइक्रोमीटर्स, वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। इनफैक्ट अगर स्पर्म सेल्स के आसपास अगर कोई सेल है जो बहुत छोटा होता है तो वो कहलाती है आरबीसी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है स्पर्म सेल और दूसरी सारी सेल्स दे रखी है, राइट, कि विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी एंड स्पर्म सेल इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, तो हम क्या कहेंगे? आरबीसी। क्योंकि ऐसे फीमेल्स में तो स्पर्म सेल्स नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? आरबीसी। तो दोनों में मौजूद होती है, मेल फीमेल में, तो आरबीसी कहेंगे, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ इट? इट इज 2 माइक्रोमीटर्स, so small, so छोटू, right? So 2 माइक्रोमीटर्स यहाँ पे इसकी विड्थ होती है। चलो ये तो बात हो गई इसकी रंग और रूप की, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पेढ़ा देखा है आपने? पेढ़ा कैसे होता है? बिल्कुल गोल सा और बीच में ऐसे उसे दबा दिया जाता है। सिमिलर स्ट्रक्चर इफ यू सी, इट इज बाइकॉन्केव। क्या कहते हैं हम इसे? बाइकॉन्केव। यहाँ से भी प्रेस्ड है, यहाँ से भी प्रेस्ड है। ये अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली टेकन अप by the RBC. Why? So that more and more oxygen binding capacity can be increased. इस स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो अब ये जो चपक जाता है ना, ऐसे बीच में प्रेस हो जाता है, इसके पीछे भी एक राज है, एंड दैट इज इट इज एन ई न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, राइट। अगर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह के भी क्या कर लेगा, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता है, गोल्जी एपरेटस भी नहीं रहता है, जिसकी वजह से बीच में जगह हो जाती है खाली और सेल जाता है पटक, राइट। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आरबीसी। आई बात समझ में? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन, अब जो कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, न्यूक्लियस है नहीं जो इसका टेक केयर करे, तो इसका लाइफ स्पैन होता है कितना बेटा जी? 120 डेज का। अब 120 डेज के बाद व्हाट हैपन्स टू इट? इट डाइज एंड इट गोज टू द स्प्लीन। स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड फॉर आवर आरबीसी, राइट। और आगे भी जाके ना ये जो हीमोग्लोबिन है इसका भी रिसाइकल होता है, और इसी से जो रिसाइकल किया जाता है ना, फिर लीवर इसका रिसाइकल करता है इस हीम पिगमेंट का, इस हीमोग्लोबिन का, और फिर हमारा बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन बनते हैं, है ना। फंटास्टिक, हमारा शरीर बड़ा ही फंटास्टिक है।
अगर हम इसकी बात करें कि आरबीसी का दूसरा सिग्निफिकेंट काम क्या है, तो भाई ये ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, राइट, ए बी ब्लड ग्रुप, तो ये ब्लड ग्रुप्स देता है। अब समझ लो कि हमें पता ही नहीं होता कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी का भी खून किसी को भी दे के देखते हैं, अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं, तो मर जाएगा तो निकालो, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो चढ़ाओ, राइट, तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो आरबीसीज है ना, आरबीसीज के ऊपर अगर किसी एक टाइप का एंटीजन मौजूद है तो वो उस टाइप का ब्लड होता है। तो अगर ए टाइप का एंटीजन मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। तो आरबीसी डिटरमाइन करती है द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसी सेल डिटरमाइन व्हाट ब्लड ग्रुप दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग, सो दैट इज ए ब्लड ग्रुप। अगर मानो कि बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप में कैसे होगा, बी टाइप का एंटीजन होगा। ठीक है, कैसे एंटीजन होगा, बी टाइप का एंटीजन होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस तरह ही नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि RH पॉजिटिव मतलब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, तो यहाँ पे और एक होता है, तो RH फैक्टर अगर मौजूद है, RH फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव, RH फैक्टर यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे है ही नहीं वो वाला गोला जो मैंने बनाया, राइट, तो इसे क्या कहेंगे हम, A निगेटिव कहेंगे, A निगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, A निगेटिव कहलाएगा, है ना। और फिर अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी में क्या होता है बेटा जी, ए बी में बहुत ही सिंपल है, ए बी में क्या होगा, दोनों टाइप का इसके ऊपर मौजूद रहेगा, ए टाइप का एंटीजन भी मौजूद रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, और बी टाइप का भी है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा ए बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे मैं RH फैक्टर भी लगाने वाली हूँ। ठीक है, काफी सा डेकोरेटेड है ए बी वाला, राइट, तो ये ए बी एंटीजन यहाँ पे मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप होता है, राइट। तो इस प्रकार, अच्छा तो फिर ओ का क्या, ओ का क्या है ना भैया, बड़ा ही सिंपल है यार, ओ में कोई भी एंटीजन मौजूद ही नहीं है तो वो कहलाता है ओ। अगर RH फैक्टर मौजूद है तो फिर इसे हम कह देंगे O पॉजिटिव, अगर ये मौजूद नहीं है तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये क्या करता है, इस प्रकार हमें हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब अगर आरबीसी के साथ कोई जुड़ी हुई डिसीजेस है क्या, हाँ जी है ना, क्यों नहीं है। एक तो ये RH फैक्टर वाला भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि RH फैक्टर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, मदर और बेबी का अगर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, मदर नेगेटिव है बेबी पॉजिटिव है, तो देन देयर कुड बी अ चांसेस ऑफ अबॉर्शन। ठीक है, एरिथ्रोफेटालिस हम जिसे कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आरबीसी का काउंट बढ़ जाए तो क्या होगा, सॉलिड्स का काउंट बढ़ जाएगा, राइट, और सॉलिड्स का काउंट अगर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी, तो उसे, उस कंडीशन को हम कहते हैं erythrocytosis, right, where erythro is your RBC, एरिथ्रोसाइटोसिस, राइट, इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टेमिया, ठीक है। तो पॉलीसिस्टेमिया एंड एरिथ्रोसाइटोसिस एक ही बात हुई, इसका मतलब क्या है, मोर आरबीसीज। यहाँ पे आरबीसी का काउंट कैसे रहता है, आरबीसीज आर हाई इन नंबर। अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, व्हेन द आरबीसी काउंट इज लेस, सो दैट कंडीशन लेस आरबीसी को हम क्या कहते हैं, लेस आरबीसी काउंट अगर है तो इसे हम कहते हैं एरिथ्रो, फिर से वही वर्ड आएगा है ना, एरिथ्रोपेनिया। पेनिया मतलब पेनी कैसी होती है, पेनी का कोई भाव नहीं होता, कम होती है पेनी का भाव, है ना, मतलब ये तो पेनी, इट इज नॉट वर्थ इवन अ सिंगल पेनी हम कहते हैं कभी कभार, है ना। तो ये क्या होता है, ये
एरिथ्रोपेनिया। इसकी वजह से एनीमिया भी होता है। एनीमिक कंडीशन वो होती है जहाँ पे इधर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है या फिर आरबीसी की मात्रा भी कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे उनमें सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है। वो लोग हाई एल्टीट्यूड जैसे लद्दाख जैसे जगहों पे जा नहीं सकते हैं, वो ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं कर सकते हैं, तो वीक भी होता है, एनीमिक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जब अब हमने एनीमिया की बात कर ही ली है और हीमोग्लोबिन की भी बात कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में होने से हम कहेंगे कि ठीक है? तो लगभग 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना, मैं यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है। हाउ मच हीमोग्लोबिन शुड बी देयर? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ योर ब्लड, ठीक है। ऑफ हीमोग्लोबिन होने से हम कहते हैं कि चलो ठीक ठाक है भैया, ठीक है। कम हो जाए तो उसे हम कहेंगे एनीमिक कंडीशन। ऑलराइट, so that was all about the erythrocytes, that's your RBC. In our next sessions we'll discuss about the other blood cells. Till then, be curious and keep learning.